गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड एंड आई होप इट्स अ नाइस संडे फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गाइडली। आई एम योर एजुकेटर फॉर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो हम हमारे फर्स्ट टू चैप्टर्स अंडर आवर फाउंडेशन बैच कवर कर चुके हैं। So all of you who have not watched the first two chapters, you must go to the playlist and check the first two chapters videos. So today we are starting with yet another very important chapter, which is operational aspects of KYC. ठीक है, तो KYC as we know is very very important for a bank, a financial institution. हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि a lot of money laundering cases can also be avoided if we take the right KYC, if we take the right customer due diligence at the time of doing our KYC, so money laundering can also be prevented to a large extent. तो इसी तरह से जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें हमें केवाईसी के गाइडलाइंस भी दिए हैं, राइट? So let's start. So for those of you who are new to the channel, let me introduce myself. I am a graduate from Shri Ram College of Commerce and a master's from University of Delhi. I am your fellow ex-banker. I have worked with the public sector bank for 5 years in different departments. I've qualified JAIIB and CAIIB, and now I'm here to help you out with your preparation. All right. तो ये कल हमारा होमवर्क क्वेश्चन था हमारे लास्ट चैप्टर से, AML, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से। तो कल हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि फटका और CRS क्या है, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन दैट यू गाइस हैड टू आंसर। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, so what does the question say? It says, which of the following is not true about फटका and CRS? फटका और CRS के बारे में इन दोनों में से क्या ट्रू नहीं है? तो हमने पढ़ा था कल फटका क्या है। ये टैक्स इवेजन को रोकने के लिए एक अथॉरिटी है, जितने भी यूएस सिटीजन्स हैं उनके लिए। ठीक है, ऐसी जो CRS है वो OECD कंट्रीज ने मिलके ये एक स्टैंडर्ड बनाया है टैक्स इवेजन रोकने के लिए। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। Option A says FATCA requires financial institutions to identify and report US accounts to the US Internal Revenue Service, which is absolutely right. ये कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेकंड है FATCA prevents US persons from parking wealth outside the US to avoid US taxes. ये भी सही है। FATCA का पर्पस यही है कि अगर आप US सिटीजन हैं और आपने पैसा किसी बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखा है तो आप कोई टैक्स तो इवेड नहीं कर रहे, उसके लिए जो बाहर वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को रिपोर्ट करता है। दिस इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन सी सेज CRS created by OECD, which is right, in response to a G20 request, right, is similar to FATCA, correct, but applies to multiple countries. ये भी बिल्कुल सही है। फटका जो है यूएस पे अप्लाई करता है, CRS मल्टीपल कंट्रीज पे अप्लाई करता है जो कि OECD की मेंबर्स हैं। तो अब हमारा लास्ट ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, इसको ही पढ़ लेते हैं। अंडर फटका एंड CRS, financial institutions are required to report only US accounts and are not required to report accounts of individuals taxable in other foreign countries. So this is wrong here. तो CRS के अंडर इसमें क्या बोल रहा है कि फटका और CRS दोनों में ही हमें सिर्फ यूएस के ही अकाउंट्स रिपोर्ट करने होते हैं, which is wrong. Under CRS we report accounts of multiple countries. So here option D is the right answer. Tell me in the comment box कि किसका ये आंसर सही था। Now let's start with our chapter 3, which is primarily based on KYC. थोड़ा सा theoretical chapter है but important है। आप लोग ब्रांचेस में हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी काफी सारी चीजें पता होंगी, बट जो गाइडलाइंस हैं ब्रांचेस में हम काफी सारी गाइडलाइंस हमें पता नहीं चलती हैं। वी आर जस्ट डूइंग द सेम वर्क एंड वी गेट टू नो so many guidelines when a specific case arises. So if you read this chapter carefully, you can save yourself from a lot of KYC hassle या जो आपके KYC से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं ब्रांचेस में।
ठीक है। तो केवाईसी क्या है? केवाईसी इज नो योर कस्टमर। तो आप एक अपने कस्टमर को जान रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि उनका पूरा जो चिट्ठा है आज तक का वो आप देख लें, नॉट चिट्ठा एग्जैक्टली बट आप आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उस कस्टमर की, ये लेजिटिमेट पर्सन है या नहीं, किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पे रहता है कि नहीं, कोई उसकी जो आइडेंटिटी है वो सही है कि नहीं। ठीक है, केवाईसी का पर्पस ये है, आप उसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कोई फेक आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, उसमें आप बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, नाउ हमारी केवाईसी के नॉर्म्स क्या है? अब केवाईसी के अंडर हमारी चार चीजें आती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम कवर करेंगे आपका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस तक हम शुरू करेंगे एंड दिस विल गो ऑन इन योर नेक्स्ट क्लास। सो इफ वी सी, पहला केवाईसी नॉर्म्स में आता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। हम कस्टमर को एक्सेप्ट किस बेसिस पे करते हैं। दूसरा आता है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाई आप क्या क्या करते हो। थर्ड आता है सीडीडी, ठीक है, जिसमें आपका सारा आता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेते हो किस तरह के कस्टमर्स के लिए। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनमें आप कब कौन सा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फिर क्या है ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ सीडीडी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके आजकल डिजिटल मोड्स भी आ गए हैं सीडीडी के ना, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के, जैसे आप आधार करते हैं डिजिटली, डिजिटली अकाउंट खोलते हैं, ई केवाईसी करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट all these alternate modes of customer due diligence। ठीक है, so let's start। पहला हमारा है इसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो हम कस्टमर को किस बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं, इस पॉलिसी का रीजन क्या है। तो बेसिकली कस्टमर एक्सेप्ट करने का जो हमारा क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम देख पाए कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क कम हो जाएं। तो आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग कितना बड़ा हमारे लिए इशू है, दैट यू नो द एंटायर थिंग ऑफ केवाईसी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, सो इट्स अ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एरिया फॉर ऑल यू बैंकर्स। तो जो हमारी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है इसमें बताते हैं कि आप किस तरह से कस्टमर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो हम बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली और सोशली डिसएडवांटेज्ड ही क्यों नहीं है। हमारे पीएसयूज का यही सबसे बड़ा वो है ना कि हमारे पास आके कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, जनधन अकाउंट्स, प्राइवेट बैंक्स ये सब अकाउंट्स नहीं खोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा काम ही यही है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक कि हमें कोई भी फाइनेंशियली और सोशली डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी है उसका अकाउंट भी खोलना है। तो हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर रहे हैं जो फाइनेंशियली और सोशली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है। और केवाईसी का अगर उन कोई ऐसा है जो केवाईसी का कंप्लाई नहीं कर रहा है, बैंक कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो दे नहीं रहे हैं या कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में हम कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली एडवांटेज्ड हो या डिसएडवांटेज्ड हो। ठीक है, दिस इज सिंपल ऑल कॉमन सेंस थिंग्स। नाउ दिस इज अ बिट ऑफ वेयर क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। नॉर्म्स क्या होते हैं कस्टमर को एक्सेप्ट करने के लिए? पहला तो ये कि हम कोई भी अकाउंट ऐसा ना खोलें जो कोई एनोनिमस नाम पे है, हमें पता ही नहीं है कि राइट आइडेंटिटी उस पर्सन की क्या है। ठीक है, पहले हम लोग कैसे अकाउंट्स खोलते थे इन बहुत पुराने टाइम में कि किसी एक कस्टमर का हमने अकाउंट खोल दिया ऑन द रेफरेंस ऑफ अनदर ट्रस्टेड कस्टमर। तो हमें पता ही नहीं है कि जो कस्टमर आया है, आधार पैन भी हम नहीं लेते थे, सिर्फ वोटर कार्ड या कुछ तो एक उनका पुराने टाइम पे डॉक्यूमेंट होता था वो ले लेते थे। तो जिससे आइडेंटिटी हमारी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, बस हमने किसी के रिकमेंडेशन पे अकाउंट खोल दिया है। दूसरा क्या है, अकाउंट्स कैन नॉट बी ओपन्ड इफ अप्रोप्रिएट सीडीडी cannot be applied due to non-cooperation of customer and non-reliability of documents। तो अगर ऐसा है कि कस्टमर कॉपरेट नहीं कर रहा और जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो रिलायबल नहीं है, तब भी हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। फिर क्या है, जो भी हम ट्रांजैक्शन कस्टमर करने वाला है वो ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के अंडर आनी चाहिए।
ठीक है, क्लियरली डिफाइन सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कस्टमर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। कौन से सर्कमस्टांसेस में जो है कोई और आपका अकाउंट चला सकता है, कि जैसे आपने ऑथराइज सिग्नेचरी या तो बनाया है, ठीक है, आपकी डीड में लिखा हुआ है कि ये पर्सन आपका अकाउंट चला सकता है। Ensure that the customer's identity does not match any person on RBI sanction list. आरबीआई एक वॉच लिस्ट निकालता है जिसमें हम चेक करते हैं कि वो कस्टमर उसमें तो नहीं है, तो हम ऐसे किसी कस्टमर का अकाउंट ना खोलें। ठीक है, आपको पैन वेरीफाई करना रहता है, राइट, हम सब लोगों के सीबीएस में ही इंटीग्रेटेड होता है फंक्शन। डिजिटल सिग्नेचर अगर कोई ई डॉक्यूमेंट दे रहा है, जैसे आजकल हमारा पैन का ई डॉक्यूमेंट आता है, तो आपको वेरीफाई करना है कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं। ठीक है, आपको केवाईसी को पीरियोडिक अपडेट करना है। हमारे बैंक्स में ड्राइव आती हैं, हर 3 साल में 7 साल में केवाईसी अपडेट करते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क लेवल ऑफ द कस्टमर। तो ये आपको यहाँ करना है। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अगर है किसी में, तो आपको सबका केवाईसी लेना है, सबका सीडीडी करना है। ठीक है, दैट्स हाउ वी एक्सेप्ट अ कस्टमर। ये हमारी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है। तो आई थिंक ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ आर बेसिक थिंग्स ओनली, जो आप लोगों को ऑलमोस्ट ब्रांचेस में पता ही है, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, टू इट्स माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू सो दैट इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर ब्रेन। अब हम देखते हैं कस्टमर को आप आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन आप कब करते हैं? जब कोई कस्टमर हमारे साथ अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है, अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर फॉर नॉन अकाउंट होल्डर्स। तो कई बार ब्रांच में क्या होता है, हम इंटरनेशनल ट्रांसफर कराते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं किसी बाहर की एंटिटी को, लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन को करा रहे हैं, इम्पोर्ट, जो लोग स्पेशली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो हमें अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। अगर किसी कस्टमर की ऑथेंटिसिटी पे आपको डाउट हो रहा है, तो आपका राइट है उसे अच्छे से इंक्वायर करना। अगर आपके पास कोई ब्रांच में आता है जो आपका कस्टमर भी नहीं है, किसी तरह के ट्रैवल कार्ड, प्रीपेड कार्ड को रिचार्ज कराते हैं 50,000 से ऊपर, तो आपको उसे केयरफुली केवाईसी के साथ आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई वॉक इन कस्टमर है, उनकी 50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन होती है, हमें देखते हैं ना, कोई वॉक इन कस्टमर है तो हम उनसे पैन मांगते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, साइन कराते हैं, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपको लगता है कोई कस्टमर हमेशा अपनी ट्रांजैक्शन, लेट्स से कई कस्टमर्स होते हैं ना 49,900 की ट्रांजैक्शन करा रहे हैं, लगातार 10 दिन तक इतने ही पैसे जमा करा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखना कि वो 50,000 का थ्रेशोल्ड कवर नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सस्पिशन का मैटर है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, और ये 50,000 के नीचे रह के आपका टैक्स अथॉरिटी से बचना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ये प्रोसेस क्या है, हम ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ड्यू डिलिजेंस इज बेसिकली एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट द कस्टमर। अब हम देखते हैं, ये सवाल बहुत सारे इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे आपके कस्टमर्स भी आके बोलते हैं कि जैसे हमें ब्रांचेस में जनरली यही पता होता है कि आधार और पैन दे दो, हम और कुछ तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। काफी लोग आते हैं बोलते हैं डीएल है मेरे पास, मतलब नहीं नहीं नहीं, डीएल तो हमारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हमारे लिए ये कि आधार और पैन दे दो। बट वी हैव 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर सर्टिफाइड बाय द राइट अथॉरिटी। तो हमारे जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स 6 हैं। तो अगर वो हम देखें, पहला है पासपोर्ट। इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्स एज कंपेयर टू आधार ऑल्सो, क्योंकि जो आपका पासपोर्ट जब बनता है तो आपका आधार और पैन दोनों ही लिया जाता है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, तो इसमें जो आपकी वेरिफिकेशन होती है और भी स्ट्रिंजेंट होती है। तो कोई अगर आपको पासपोर्ट दे रहा है, दैट इज एन इवन बिगर डॉक्यूमेंट दैन आधार। दूसरा क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, दैट इज ऑल्सो एन ओवीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। फिर है हमारा आधार, ठीक है, जो हम मोस्टली लेते ही हैं ब्रांचेस में। देन वी हैव अ वोटर आईडी, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज एन ओवीडी।
फिर हमारे पास है जॉब कार्ड इशूड बाय मनरेगा ड्यूली। मनरेगा का जो जॉब कार्ड है इशूड, वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ओवीडी। लास्ट क्या है, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। जो हमारा पॉपुलेशन मेजरमेंट करते हैं उनकी तरफ से कोई लेटर इशूड है जिसमें आपका नेम और एड्रेस दोनों होना चाहिए, क्योंकि वो हमें वेरीफाई करना होता है। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, जॉब कार्ड और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। अब हम बात करते हैं, काफी बार क्या होता है हमारे पास कोई आधार आया, ठीक है, उस आधार में उस कस्टमर का एड्रेस, लेट्स से आप किसी गुड़गांव की ब्रांच में है, बिहार का है, बट वो 2 साल से रह रहे हैं गुड़गांव में। तो आप पहले तो आपकी ब्रांच गुड़गांव में, तो आप यही चाहते हैं कि एड्रेस आप लोकल एड्रेस पे ही खोलना चाहते हैं, तो आपको कोई लोकल एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है, राइट। उन्होंने अपना आधार अपडेट कराया नहीं है गुड़गांव आने के बाद भी। तो अपडेशन ऑफ एड्रेस के क्या आपका मैकेनिज्म रहता है, क्या तरीका रहता है, ये आज हम देखेंगे। अगर किसी इनमें से जो हमने ओबीडी डिस्कस किए हैं, इनमें अगर आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं रहता है, तो लिमिटेड पर्पस के लिए हम उस कस्टमर को ये तो नहीं कहेंगे कि अरे आप जाओ, हम अकाउंट ही नहीं खोलते। तो फॉर अ लिमिटेड टाइम आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो टू वेरीफाई देयर करंट एड्रेस। वो क्या है, यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 2 months ओल्ड ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर। ये हम लेते ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल, ये आपका बहुत ही कॉमन है। ठीक है, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ऐसा कोई बिल जो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसको आप टेम्परेरी एड्रेस के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो गुड़गांव या मेजर सिटीज में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल, तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। म्यूनिसिपल टैक्स की कोई रिसीट है या प्रॉपर्टी रिसीट है, उस पे आपका नाम और एड्रेस है, तो आप वो भी एड्रेस अपडेट करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर किसी फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, पीपीओज आ रहे हैं, उसके पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, और उसमें आपका एड्रेस है, तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। चौथा क्या है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, listed companies allotting official accommodation। अगर हमारी बेसिकली इन शॉर्ट बताऊं तो हमारी कोई भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, या कोई लिस्टेड कंपनीज हैं जो एक रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उन्होंने आपको कोई ऑफिशियल अकोमोडेशन दिया हुआ है, और उसका लेटर ऑफ अकोमोडेशन अगर कस्टमर लेके आता है एड्रेस अपडेट करने के लिए, तो आप वो भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हम क्या क्या ले सकते हैं, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी रिसीट्स, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या फिर अंडरटेकिंग और लेटर बाय एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी हम ये डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं एड्रेस अपडेशन के लिए, हमें ये ध्यान रखना है कि 3 महीने के अंदर उस ओवीडी पे भी करंट एड्रेस अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो कस्टमर को फिर ब्रांच में सबमिट करना है। ये है दूसरा, चेंज इन नेम। ये बहुत इशू आता है ब्रांचेस में, कस्टमर ने अपना नाम पैन पे अलग लिखवाया, आधार पे अलग लिखवाया, स्पेलिंग चेंज कर दी। ठीक है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपका चेंज इन नेम है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। हम जनरली ब्रांचेस में वही देखते हैं, गेजेटेड नोटिफिकेशन निकलवाइए आप न्यूज़पेपर में, एक तो वही है आपका तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आपका शादी के बाद नाम चेंज हुआ है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट कर दें, और वैसे ही ओवीडी में जो आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, 3 मंथ्स के विद इन आप उसमें भी अपना नाम चेंज करा लें। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आप ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करके नेम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास मैंने शॉर्ट ही रखा है बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, सो आई डिडंट वांट टू मेक इट बोरिंग फॉर यू गाइस। तो अभी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे आज, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो विल सी सम थिंग्स रिलेटेड टू केवाईसी ओनली। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आई होप यूल बी एबल टू आंसर दिस नाउ। Among the documents stated below,
डैश इज नॉट एन ओवीडी। इनमें से क्या आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है? पैन कार्ड, जॉब कार्ड बाय नरेगा, लेटर बाय एनपीआर, प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ आधार नंबर। तो हमने देखा था जॉब कार्ड इज एन ओवीडी, लेटर बाय एनपीआर इज एन ओवीडी, एंड प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ आधार नंबर इज ऑल्सो एन ओवीडी। तो हमारा आंसर क्या है? पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैन कार्ड तो हमारा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, बट पैन कार्ड हम किस लिए लेते हैं? पैन कार्ड इज टेकन ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, इट डज नॉट कम अंडर ओवीडी। पैन कार्ड हम इसलिए लेते हैं कि टैक्स इवेजन ना हो। बट अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें कस्टमर की, हम किन डॉक्यूमेंट से कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो ओवीडी के थ्रू हम करते हैं, और उसमें हमने पढ़ लिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पैन कार्ड इज नॉट एन ओवीडी, it is an additional document that we take to trace the tax that an individual has to pay, to report it to the tax authorities. अब आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी इज इनकरेक्ट? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी हमने आज पढ़ी है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Accounts can be opened in anonymous or fictitious names if the customer provides sufficient documentation. ठीक है, no account is opened where customer CDD cannot be applied. Circumstances under which a customer can act should be clearly defined. Policy ensures that the identity of the customer does not match any person or entity on RBI's sanction list. So I hope आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा ऑलरेडी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, तो ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ आया, एंड नाउ यू विल बी एबल टू नो ऑल द क्लॉजेस रिगार्डिंग केवाईसी। स्पेशली जो लोग नए हैं ब्रांचेस में, उनको कंफ्यूजन रहता है केवाईसी में हम क्या क्या ले सकते हैं, एंड वी विल बी डूइंग अ नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ऑन केवाईसी, एंड this is the end of the class. If you guys are planning to start your JIB preparation more descriptively, more comprehensively, तो आप हमारा सुपर प्लान ले सकते हैं, जो कि एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। उसमें आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आप ही हमारा प्लान ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द प्लान्स देयर। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल so that you get all the regular updates about the classes. All right, thank you so much for today. See you in the next class.